Good morning students, myself Swarjit Kaur, maths teacher from Harvard School. In class 12 mathematics students, we have started the 5F exercise. That is, in this exercise we are doing the derivative of the exponential function and the logarithmic function. First हमने simply जो उसकी examples थी वो की थी first to 13th. Today we will start the its long questions. So first is 14th question is today's first question, that is the 14th first question is given to you. X square plus 7x plus 2 ex minus of sin x. This is given to you. We have to find out the derivative of this. This is the product of two functions. Product of two function is given to you. So we will apply the product rule. What is the product rule? Write down the first function as it is, then derivative of the second. Now derivative of e power x is e power x, derivative of sin is cos x, then plus second function as it is and derivative of the first. First in this you have given the x square plus 7x plus 2. Now what is the derivative of x square? 2 आगे आ जाएगा x and 7 इसका तो 0 ही है. So that is your answer. Means in this question you have given the two function in the product. So how to find the derivative ये हम already कर चुके हैं. किस तरीके से करते हैं? Write down the first function as it is, derivative of the second, then second as it is, derivative of the first. Now come to its question number. इसके साथ आपका बच्चे इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सेम एज इट इज है. चलो फिर भी मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवा देती हूँ. थर्ड पार्ट इज e पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ log x. सो यहाँ पे आपको टू फंक्शंस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट फॉर्म में टू फंक्शंस गिवन है. सो सेम एज इट इज टेक इट द y. नाउ dy over dx will be, write down the first function as it is, derivative of the second. साइन का डेरिवेटिव बच्चे क्या आ जाएगा? cos log x. अब आगे log x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, that is the 1 upon x, and then is the sin of log of x as it is, and then derivative of the first. फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे e पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक बार लिख लेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x स्क्वायर, दैट विल बी माइनस ऑफ 2x. दोनों में कॉमन क्या है? e पावर माइनस एक्स स्क्वायर. ये क्या रह जाएगा? cos log x ओवर x प्लस माइनस लगा लो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस उसके आगे लगाएंगे, सेम ही है, 2x इंटू साइन log x. दैट विल बी योर आंसर. मीन्स अब इसमें बच्चे देखो log वाला भी है और e वाला भी है, दोनों में आपने क्या लगाना है? प्रोडक्ट रूल लगाना है. बार बार जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ ही ये क्वेश्चंस हो पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है कि आपके हो सके. बट अगर प्रैक्टिस करोगे देन इट इज वेरी इजी फॉर यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट मैं आपको इसका 16th क्वेश्चन करवा रही हूं. ये बच्चे पेपर में आ जाता है. 16th is second part. 16th question, second part is log of x plus square root of x square plus of b square. अब देखो बच्चे log सारे के साथ है और log का मैंने आपको सिंपली फॉर्मूला क्या बताया है कि जब भी आपने log का डेरिवेटिव करना है then what will you do? You will take it into the denominator, then the derivative of this one. Now derivative of x is 1 and its derivative पावर उसकी 1/2 आगे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा ना, -1 करके, and
then derivative of 2x is x square is 2x. So this will be 1 upon x square root of x square plus a square 1 plus x over x square plus a square. ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस इनका डेरिवेटिव. स्क्वायर रूट में आपको कोई एग्जांपल गिवन होती है आगे तो बस इसको सॉल्व ही करना है. एलसीएम लिया ये इधर चला जाएगा प्लस x. नाउ दिस इज कट विद दिस so you have only the answer is 1 upon square root of x square plus a square is your answer. दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ. इसमें आप क्या करोगे अगर आपको log of x plus square root of x square plus a square given है then log is given to you. Take this into the denominator. After that take its derivative. Derivative of x is 1 and derivative of square root is this one. इसे आप साइड पे सॉल्व करना. ठीक है अगर नहीं पता चल रहा तो फिर इसको आप सॉल्व कर लो सिंप्लीफाई कर दो ये दोनों कट हो जाएंगे. एंड पे आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही रह जाएगा. ये एक्सरसाइज से बच्चे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं आपको 17 फर्स्ट पार्ट करवा रही हूं. 17 का फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू यू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये चीज हम अभी सॉल्व करके हटेंगे. ठीक है अब देखो बच्चे इसमें क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ये सिंपली सिंगल गिवन है तो डेरिवेटिव कर दो. प्रोडक्ट में आप क्या लगा दोगे दो फंक्शन के अगर प्रोडक्ट है अप्लाई द प्रोडक्ट रूल x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1. अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x plus square root of x square plus 1 then derivative of x is 1 2 square root of x square plus 1 and 2x. ये दोनों कट हो गए ये भी कट हो जाएगा 2 with 2. so you have x square over x square plus 1 square root of x square plus 1 and plus 1 over x plus square root of x square plus 1 and x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट x ये नीचे आ जाएगा. मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया ये दोनों कट हो गए. सो योर लास्ट आंसर विल बी बाय सिंप्लीफाइंग दिस इज योर आंसर इज दिस वन. ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं. आगे चल के जो भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है ना उसमें भी ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस है. ये करने जरूरी है आपके लिए. चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन करवा रही हूं मैं आपको. इसका क्वेश्चन नंबर 20 करवा देती हूँ. इससे पहले जितने भी क्वेश्चन दिए हैं किसी में प्रोडक्ट रूल लगना है किसी में क्वेश्चन रूल अप्लाई होना है. नाउ कम टू द 20th क्वेश्चन. log of sin of square root of 1 plus x square. अब बच्चे देखो अगर आपको log फर्स्ट गिवन है so that means its derivative will be log को सिंपली नीचे लिख दो बस जो भी है. ठीक है अब आगे किसका डेरिवेटिव है sin का cos square root of 1 plus x square then is the derivative of the square root of इसका आ जाएगा आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. 2 is cancelled with 2 so you have अब cos और sin बच्चे एंगल इज सेम. cos ओवर sin क्या बन जाता है आपके पास cot स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसको इसके साथ कट मत करने लग जाना क्योंकि बच्चे दिस इज द एंगल ऑफ द cot.
वो अलग से पड़ा है और ये कॉट का क्या है आपके पास एंगल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको करवा रही हूं 21 का फर्स्ट पार्ट। 21 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। डेरिवेटिव में तो बच्चे डेरिवेटिव और मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज द प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको क्वेश्चंस जल्दी आएंगे। सो 21 फर्स्ट पार्ट इज 2 टाइम LL लिखा है मींस log x माइनस 1 x प्लस 1। बच्चे आपके पास फॉर्मूला है log a ओवर b। log a ओवर b क्या होता है? log a माइनस log b। ठीक है, सिंपली लिख लो इसको क्योंकि इसके साथ आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। log ऑफ x माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 1। सो नाउ दिस विल बी dy ओवर dx इज 2 टाइम्स। अब बच्चे सिंपल लॉग क्या बन जाएगा? x माइनस 1। अब x का डेरिवेटिव 1, जरूरत नहीं लिखने की, और इसका x प्लस 1। दैट विल बी योर आंसर। अगर आप इसी से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। सो अप्लाई द आइडेंटिटी log ऑफ a ओवर b सेम एज इट इज। अगर आपके पास log a इंटू बी आ जाता है तब क्या हो जाता है? प्लस। ये आइडेंटिटीज आप कब से करते आ रहे हो? 9th क्लास से। अब इसका मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, फिर आपने इसके 24 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। 22nd फर्स्ट पार्ट log ऑफ secant x प्लस ऑफ tan x। बच्चे अभी हम करके हटे हैं कि अगर आपके पास log होता है, log मीन्स when you will take its derivative, this will becomes dy over dx is 1 over secant x plus tan x, and derivative of secant x is secant x into tan x, and derivative of tan x is secant square x। यही होता है ना सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करना आपने। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? secant x is कॉमन, secant x बाहर निकालो, यहाँ पे क्या रह जाएगा? tan x plus of secant x। Why? Because we have taken the one secant x common, so that's why here is the power 2, so power 1 will be remaining here। So this will be the secant x plus tan x। Now this will be cut, so you have only the answer is secant x। इसके साथ आपके जितने मैंने आज आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके साथ आपके 14 to 24 आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। जो वेरी लॉन्ग और हॉट्स रह गए, आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट यहाँ तक आपकी इस एक्सरसाइज के फर्स्ट से लेके 13 तक मैंने पहले करवा दिए थे, 14 to 24 अब करवा दिए हैं। ये सारे के सारे करने आपके लिए कंपल्सरी है। अगर बच्चे आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो बार बार उसकी वीडियो रिप्ले करके देखो, तभी आपको क्वेश्चंस ये समझ आएंगे। और प्रैक्टिस इज मस्ट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।